are going to start a new topic. What is the topic? I don't have a flower. Yes, and for the explanation, we'll go to the screen. So today we are going to start a lesson. That lesson is I don't have a flower. I don't have a flower. So before beginning the explanation, let's see some word meanings. First one, that is successor. Successor, a person who succeeds another. A person who succeeds another means किसी के रूल करने के समय के बाद जो व्यक्ति रूल करेगा उसे हम सक्सेसर कहते हैं. Second one, that is tended. Tended means looked after. किसी चीज़ को हम बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं या ध्यान रखते हैं उसे हम कहते हैं tended. Let's begin this lesson. So, the story is about the Chinese emperor and his search for finding a good successor after him for his kingdom. So, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये चाइनीज़ एम्परर हैं और ये चाइनीज़ एम्परर बहुत चिंतित थे क्योंकि वो अपने समय के बाद में कौन उनकी जगह लेगा, कौन उनकी जगह बैठकर रूल करेगा, वो उसके लिए सोच रहे थे और उसकी तलाश में थे. The Chinese emperor ruled his country fairly and wisely, and because of this, the people in his land were very happy. So of course, it's a fact कि अगर जो एम्परर हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी तरह से रूल करते हैं, तो उनकी जो प्रजा होती हैं वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं. But with the time, the emperor was growing old and he began to worry about the successor who would be taking charge after his time. He asked his advisors also for help, but none of them gave satisfactory answers. So, एम्परर ने पूछा अपने जो साथ के जो दरबार में बैठते हैं उनसे भी पूछा कि आप मुझे एडवाइस करो कि मुझे किसे चुनना चाहिए अपने बाद. लेकिन जो भी उनसे आंसर्स मिले, he was not satisfied with those answers. Then one evening the emperor was walking in his beautiful garden. So, in this picture we can see this beautiful flowers, and this was the beautiful garden of this emperor. So, one evening he was walking in his beautiful garden. As he looked at the beautiful flowers that he had so lovingly grown, an idea occurred to him. जब वो उस गार्डन में टहल रहे थे और जब उन्होंने इन फूलों को देखा तो उन्हें एक आइडिया आया. What was that? So the next day he announced that flower seeds would be distributed at the emperor's castle. तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया कि नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन कैसल से, महल में जो है हर तरह के फ्लावरिंग सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, बांटे जाएंगे. सो इन दिस पिक्चर ऑल्सो वी कैन सी मेनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स हैं. सो हम सभी जानते हैं इन सीड्स को अगर हम सो करते हैं, मिट्टी में अगर हम लगाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट मिलेगा. सो लेट्स सी, कंटिन्यू दिस. सो द नेक्स्ट डे एज ही अनाउंस्ड दैट द फ्लावर सीड वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, he added that anyone could take a seed and bring it back after it had grown into a plant and flowered. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इसे ले जाता है वो इसे कुछ दिन बाद मुझे लाकर दिखाएं कि इससे किस तरह का फ्लावर और किस तरह का प्लांट निकला है. By hearing the announcement, many people came and took away seeds. Among them was a young boy, Chang, who loved growing flowers. And he was sure that his flowers would be the most beautiful. So, जो वो प्रजा थी, जो जितने लोग वहाँ आए थे उनमें एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका नाम था चैंग. He also took some seeds और उसे बिल्कुल श्योर था वो कि मेरे जो फ्लावर्स हैं that those will be the most beautiful. Chang sowed that seed in a silver pot and looked after it for the whole day and night. पूरी दिन रात वो क्या करता था, उन सीड्स को वो पहले तो उसने सो कर दिया एक सिल्वर पॉट में और उसके बाद ये जो सीड्स हैं
उसने सो करने के बाद उसने देखा कि पूरी दिन रात उसकी देखभाल करते रहता था। He found it strange that the seed did not flower. लेकिन एक स्ट्रेंज बात हुई, एक आश्चर्यजनक बात हुई कि जो सीड्स हैं वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे थे। Soon the emperor announced that he wanted to see the flowers grown by those given seeds. Everyone who had taken the seeds from castle gathered outside. All of them had plants with the most beautiful flowers. तो क्या हुआ, एकदम से एम्परर ने कह दिया कि वो अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने कि वो जो सीड्स उन्होंने दिए थे उसके प्लांट्स और फ्लावर्स वो देखना चाहते हैं। तो बहुत से लोग जिन्होंने वो सीड्स लेकर गए थे, दे ऑल गैदर्ड इन द कैसल, वो महल में इकट्ठा हुए और सबके हाथों में ब्यूटीफुल फ्लावर्स के गमले लेके थे। बाय सीइंग ऑल दिस चैंग द लिटिल बॉय गॉट वेरी सैड। उसे बड़ा दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि उसका जो पौधा था वो तो बिल्कुल फ्लावर दे ही नहीं रहा था, वो प्लांट ग्रो ही नहीं हो रहा था। Some of his friends told him to take a flowering plant of another seed from elsewhere. उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे चैंग के, तो उन्होंने कहा कि तुम बाहर से दूसरे किसी प्लांट को क्यों नहीं ले जाते हो जो किसी और सीड से निकला हो। बट his father told him, you have tried your best. Now you must take this pot to the emperor and tell him the truth. लेकिन उसके फादर ने क्या कहा, चैंग के फादर ने कहा कि तुमने इसके पीछे बहुत मेहनत की है तो तुम्हें यही पॉट ले जाना चाहिए और एम्परर को जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है वो बताना चाहिए। In the castle the emperor admired all the flowers which his people were carrying. Or when he came to Chang he saw his pot. He asked, where is the flower? At this Chang told him the truth that he had tried his best, but the seed did not grow into a flower. So, जब चैंग के पास एम्परर आए तो उन्होंने देखा कि उसका जो पॉट है, इस पॉट में बिल्कुल भी प्लांट नहीं है, ना ही फ्लावर है। तो उसने पूछा, तो चैंग ने क्या कहा, उसने सच्चाई बता दी that he tried his best but the seed did not grow into a flower. By hearing this the emperor hugged the boy. ये सुनते ही एम्परर ने उसे गले लगा लिया। Everyone was amazed by seeing this. सबको आश्चर्यजनक हुआ कि ये कैसे हो गया। The emperor announced that Chang will be the king after him as he was the only one who had been honest. एम्परर ने अनाउंसमेंट कर दिया कि उनके बाद जो सक्सेसर होंगे वो होंगे चैंग। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों में चैंग अकेला था जो ईमानदार था। कैसे ईमानदार था? Then the emperor revealed that the seeds given by him could not grow as they had all been boiled. एम्परर ने जो उनका आइडिया था, जब उन्होंने जो फूल को देखकर जो आइडिया सोचा था उसके बारे में बताया कि जो सीड्स सबको दिए गए थे वो ग्रो हो ही नहीं सकते थे। वाई? बिकॉज सारे जो सीड्स थे उन्हें बॉईल किए गए थे। तो बॉईल किए हुए सीड्स कैसे ग्रो होते? एंड विथ ऑनेस्टी चैंग वन द एम्परर्स हार्ट। चैंग अपनी ईमानदारी पे कायम रहा, उसने बिल्कुल चीटिंग नहीं की। और बाकी के जो लोग जो गमले लेकर आए थे जिसमें फ्लावर्स थे उन्होंने चीटिंग की थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो फ्लावर्स लेके आए थे हो सकता है कि वो दूसरे प्लांट के रहे हों या दूसरे सीड्स के रहे हों। एम्परर ने जो सीड दिया था उससे बिल्कुल भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकते थे। सो चैंग वॉज द ऑनेस्ट वन एंड बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी ही वन द एम्परर्स हार्ट। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन। I hope you all enjoyed and understood this lesson very well. We'll meet with a new chapter in our next video. Till then, take care. Bye-bye.